سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسلامی سربراہان کے ہنگامی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کا قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی جوابی اقدامات کی حمایت کی۔ غزہ جنگ رکوانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ مسئلہ فلسطین کو حل کیے بغیر منصفانہ امن کا حصول ممکن نہیں۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اسرائیل کی قطر میں جارحیت خطے کے امن کو تباہ کرتی ہے۔ قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ حملے کو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی بزدلانہ حملے سے نمٹنے میں قطر کے مہذب اور دانشمندانہ رویے کو سراہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا، قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ جارحانہ اقدامات کا تسلسل ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا دیا۔ اس جارحیت کے بعد سوال ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا۔ اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانا قابل مذمت ہے۔ عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کے حامی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامک سربراہی اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد اور امیر قطر سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی۔ قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت، مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے قطر میں اسرائیل کی جارحیت کو مشرق وسطیٰ میں امن عمل سبوتاژ کرنے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی جرأت مندانہ اور مدبرانہ قیادت کو سراہا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ اس نازک گھڑی میں متحد ہوئی۔ یقین دلایا پاکستان ہر سطح پر سفارتی حمایت فراہم کرے گا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ اس ہفتے آپ کے دورہ ریاض کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی بھیجا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور فلسطین کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم تاجکستان اور مصر کے صدور کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی قطر کے خلاف اسرائیل کی حالیہ جارحیت کی سخت مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا مسلم دنیا کے اتحاد کی فوری ضرورت پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت ترین مذمت کی۔ شہباز شریف نے اس مشکل مرحلے پر مصر کی فعال سفارتکاری کو بھی سراہا۔ مصر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال کے پیش نظر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ گورننس کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر گجرات ہے۔ 26 ارب روپے سے گجرات میں نیا سیویج سسٹم ڈال رہے ہیں۔ تنقید و دعوے کرنا آسان ہوتا ہے، انہیں سب کچھ آتا ہے، بس کام کرنا نہیں آتا۔ کام کرنے کے لیے بستروں سے نکل کر میدان میں آنا ہوتا ہے۔ مجھ پر تنقید ہو رہی ہے کہ امداد کیوں نہیں مانگی۔ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورس اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات ہے۔ آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف 26 ارب روپے سے گجرات کا پورا نیا سیویج اور ڈرینیج سسٹم ڈال رہی ہے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے بستر سے اٹھ کے نکلنا پڑتا ہے، تیار ہو کے
मैदान में आना पड़ता है। पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। मरियम ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाय मेरी इमदाद करो मेरे लोगों को। ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। मरियम नवाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। हम एक एक का इंशाअल्लाह ताला नुकसान पूरा करेंगे। जब तक ये अपने घरों में वापस जाके आबाद नहीं हो जाते, मरियम नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत आराम से नहीं बैठेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मकामी इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से बातचीत हुई। सैलाब मुतासरा खवातीन को दिलासा दिया और नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी करवाई। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुसलसल मैदान अमल में। उन्होंने मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और DGPDMA ने मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। दफा क्योंकि वेलोसिटी कम थी, हाइट ज्यादा थी, तो पानी यहाँ से बाहर निकला। सबसे पहली आबादी जो हमारी हिट हुई है वो बंद टूटा है। नेवर मैडम। मरियम नवाज की अलीपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल आमद। स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलतों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान जौ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकम के चेक्स पेश किए। फ्लड रिलीफ कैंप में मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से बातचीत। उन्होंने सैलाब मुतासरा खवातीन को दिलासा दिया और नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी करवाई। मरियम नवाज खुद जाकर खवातीन और बच्चों को खाना पेश करती रहीं। उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में बच्ची की ख्वाहिश पर उनके साथ क्रिकेट खेली। मरियम नवाज ने बॉल कराई और हिट करने पर बच्ची को दात दी। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप के आर्जी क्लासरूम में बच्चों से पढ़ाई के बारे में भी पूछा। सैलाब मुतासरीन खानदान को तोहफ़े भी पेश किए। मरियम नवाज ने इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत पर पाक नेवी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। पंजनद बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इस वक्त पंजनद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजनद से निकलने वाली दो नहरों अब्बासिया कैनाल और अब्बासिया लिंक कैनाल में पानी छोड़ दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ियाउल हक शहजाद। और जी देखिए, पंजनद बैराज पर यहाँ पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त यहाँ दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर पानी की आमद 2,72,700 क्यूसेक, जबकि पानी का जो अखराज है 2,70,200 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ऊंचे दर्जे से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल आने पर यहाँ पर जो नहरें निकल रही हैं अब्बासिया कैनाल और अब्बासिया लिंक कैनाल, उनमें भी पानी छोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जिन मुतासरीन ने बाहर इनखला किया था उनकी भी सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया की जानिब से कुछ फ्लड रिलीफ्स भी कायम किए गए हैं और यहाँ पर जो समाजी इदारे हैं वो भी इनको खैरात वगैरह और जो खुराक है वो कोशिश कर रहे हैं मुहैया करने की। लेकिन एक बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन जो है यहाँ पर मिंचन बंद पर और यहाँ पर इसके अलावा चंद्रबान नाला पर बड़ी तादाद में मुतासरीन इस वक्त भी यहाँ पर खुले आसमान तले मौजूद हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उनके माल मवेशी भी उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर उनके जो बच्चे हैं, देखा गया है कि वहाँ पर गैस्ट्रो की बीमारियाँ भी उन बच्चों में, वहाँ पर वो बच्चे शिकार हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ एलर्जी की बीमारी भी देखने में आई है। तो यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप्स यहाँ पर हमें नहीं नज़र आए। वहाँ पर उन्हें वाशरूम के मसाइल का भी सामना है। तो इस सारी सूरत हाल में सैलाब मुतासरीन ने यह मुतालबा किया है कि उनके लिए इक़दामात किए जाएँ, ताकि अभी क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद है, अभी उन्हें वापस जाने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो उन्हें यहाँ पर रिलीफ के इक़दाम करने के लिए हुकूमत फौरी इक़दामात करे। जी, बलूचिस्तान से अहम खबर दें आपको, जिसके जिला केश में बम धमाके में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से ये बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। जफर हाशमी ने इस्लामाबाद से में ज्वाइन किया। जफर हाशमी, मजीद क्या इन्फॉर्मेशन फराहम की गई ISPR की जानिब से? जी, ISPR के मुताबिक ये हमला जिला केश के इलाके शेरबंदी में जो है वो किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर एक बुज़दिलाना IED हमला किया गया है, जिसके नतीजे में पाक फौज के 5 जवान जो हैं वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शहदा में कैप्टन वकार, जिनकी उम्र 25 बरस और जो जिला लोरा लाई के रिहायशी थे, उनके अलावा नाइक इसमतुल्लाह, जिनकी उम्र 35 साल, वो डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखते थे। लांस नाइक जुनैद अहमद, जिनकी उम्र 29 साल थी, वो जिला सिक्कर से ताल्लुक रखते थे। लांस नाइक खान मोहम्मद, जिनकी उम्र 29 बरस थी, वो जिला मर्दान, और सिपाही मोहम्मद जहूर, जिनकी उम्र 28 बरस थी, वो जिला सवाबी से
ताल्लुक रखते थे। ये 5 जवान जो हैं वो इस हमले में जो है वो शहीद हुए हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इलाके को जो है वो घेरे में ले लिया है और इसमें फॉलो अप सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में जारी है, और ताकि यहाँ अगर कोई दहशतगर्द मजीद कोई दहशतगर्द पाया जाता है कोई या इनका सहूलतकार, तो उसको तलाश करके उसको भी जो है वासिल जहन्नुम किया जाए। इलाके में मजीद क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि किसी भी दहशतगर्द को जो है वो फरार होने का मौका ना मिले। ISPR का ये भी कहना था कि हमारे बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां कौम और अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे कौम के साथ मिलकर मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है और वे इसके मुकम्मल खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जो है उसे जारी रखेंगे। सही, ज़फ़र हाशमी बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल अज़्म है सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी से निपटने के लिए। ये भी बताइएगा कि क्या ISPR की जानिब से इनके ताल्लुक से मुतालिक भी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि इन हमसाया ममालिक से इनको सपोर्ट हासिल थी? जी बिल्कुल, जैसे इसमें बताया गया कि भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज जो बलूचिस्तान में और KP में सरगर्म अमल हैं और इनको भी ये भारतीय सरपरस्ती हासिल थी इनको, जिन्होंने ये IED हमला किया और जिसके नतीजे में हमारे ये 5 जवान, एक कैप्टन और जो 4 जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये दहशतगर्द जो हैं इनको मुसलसल भारतीय सरपरस्ती हासिल है। सही, भारतीय प्रॉक्सीज थे ये जिन्होंने हमला किया और 5 दहशतगर्द इसमें से हलाक भी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हाशमी, आपने हमें मालूमात फ्राहम की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दरिया चनाब के सैलाब ने शुजाबाद के 12 मुख्तलिफ मवाज़ात में तबाही मचा दी। ताहम मौजूदा सूरत हाल में सैलाबज़दा बस्तियों से पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ताहार मुतासरा बस्तियों में 5 से 6 फीट तक पानी जमा होने से मुतासरीन की मुश्किलात ताहार बरकरार है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमान खान बाबर से। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। पहले मुल्तान की 138 बस्तियां जो हैं सैलाब की लपेट में आई, फिर जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में भी यही सूरत हाल है। 12 मौजे जो हैं इस वक्त पानी की जद में है, मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। अगरचे पानी का लेवल किसी हद तक कम होना शुरू हुआ है, 2 से 3 फुट जो है पानी कम हुआ है, लेकिन अभी भी मसाइल हैं। 5 से 6 फुट जो पानी है वो जमा है। मौजा रुकन हटी है, इसी तरह से मौजा वैंस है और दीगर मौजा जो हैं इस वक्त पानी की लपेट में। हज़ारों अफराद जो हैं इस वक्त बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों मकानात जो है सैलाबी रेला बहाकर ले गया है। सूरत हाल कि बड़ी तादाद मुतासरीन की इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो बंद हैं, धोंध बंद है, उस पर पनाह लिए हुए हैं, लेकिन बेयारों मददगार है क्योंकि यहाँ पर बिजली यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बिजली और मवासलात का निज़ाम भी धर्म भरम होकर रह गया है। माल मवेशी के हवाले से यहाँ पर चारा दस्तयाब नहीं है और खाने पीने के हवाले से ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है। सूरत हाल कि मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। रातें गुजारना जो है मुतासरीन के लिए मुश्किल होता जा रहा है और इसके साथ साथ दिन के औकात में भी गर्मी जो है उसकी शिद्दत जो है सताती है। और इस तरह माल मवेशी के हवाले से भी पूरा दिन माल मवेशी जो है वो धूप में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन इंतहाई परेशान है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो आगे बढ़ें और उनका साथ दें। इसके साथ साथ जो हुकूमत जो है वो अपने रिलीफ के हवाले से जो इक़दाम हैं उसको बढ़ाए, इनको कैंप फराहम करे। इसके साथ साथ जो घर मकानात नुकसान हुए उसको मकानात के नुकसान के अजाले के हवाले से भी इक़दाम किए जाएँ। जी, दरियाए सिंध में सखर के मुकाम पर पानी की ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इसके साथ साथ पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला भी जारी है। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम करार पानी की सतह में मजीद इजाफे के इम्कानात है। मजीद जानेंगे अहकर रसवे से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध में और ये खीरथर केनाल के ऊपर मौजूद हूँ और खीरथर केनाल बलूचिस्तान तक ये पानी लेके जा रहा है। अब बात करते हैं सैलाबी सूरत हाल की, तो सैलाबी सूरत हाल इस तरह से है कि मुसलसल हम 2400 घंटे से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पानी की सतह मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। कभी 1000 क्यूसेक्स तो कभी 50,000 क्यूसेक्स। तो अब यहाँ पे इस तरह से अब बात करते चले कि यहाँ पे जो आमद है पानी की वो 5,60,000 क्यूसेक्स रिकॉर्ड की गई है, जबकि अखराज जो है 5,08,000 क्यूसेक्स है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है आपाई हुकाम की जाने से इस पानी की सतह में मजीद इजाफा भी देखने को मिलेगा। जबकि रात देर गए ये भी इम्कानात का इज़हार किया जा रहा है कि यहाँ पर रात देर गए या कल सुबह तक यहाँ पे पानी का ये सैलाबी रेला अपनी पीक पर पहुँचेगा। गवर्नमेंट उनके साथ तावन करे, जो तंजीमें हैं वो वहाँ पर उन कच्चे के इलाकों में उनकी मदद करे। ताहम उनके घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है। अगर 6 लाख क्यूसेक का रेला भी यहाँ पे हो जाता है तो उनके घर डूब जाएंगे। अब इसी सूरत हाल के मद्देनज़र जब हमारी बात हुई आपाशी हुकाम से, तो उन्होंने यही कहा कि पानी की औसतन सतह जो है मुमकिन तौर पर 6 लाख
क्यूसेक तक जाएगी। सो लिहाजा यहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और ये खास तौर पे ये 24 घंटे सक्खा बैराज के लिए अहम करार दिए जा रहे हैं कि ताकि जो ये सैलाबी रेला यहाँ से ये बआसानी तौर पे गुजारा जा सके। जी।